Yeah. So who wants to go for the recapitulation of yesterday's class? Anyone? Yep. Yeah, please go ahead. So in yesterday's session, we studied about the types of persistent disk, which is divided into two types, managed disk and unmanaged disk. In managed disk, it is further divided into four types: standard HDD, standard SSD, premium SSD, and ultra SSD. And in unmanaged disk, it is divided into two types, that is standard HDD and standard SSD. Then we read about their size, IPS, throughput, and then premium and ultra discs are available at some particular regions only. Then we studied about the CDN, which is content delivery network. It is used to rapidly delivery. It is used for rapid delivery content and increase the responsiveness. Because let a web server is deployed in US and a client is trying to connect it from a very farther area, and so the latency will be high. But if the client will request from a nearer area, then the latency will low. So for this case, we use CDN. Here there will be edge locations in multiple places where a copy of the web server or the resource will be kept in that endpoint, and the client will, when the client will request, he will get from the nearest endpoint. So it is also called the front door. For this, we create a front door, give the endpoint name, select the origin type. The place where endpoints are set are called as POP, that is point of presence. And India has 4 locations. And when we hit the endpoint host name, we get the contact. And then we studied about Azure App Services. Earlier, we were creating a website or deploying a website by configuring web server in the VM and add the content. So this is infrastructure as a service. But in App Service, we only give our content, and the other things are seen by the Azure itself. So this is called a platform or service. We created a web app, then we select the runtime stack, and we add the content in the deployment center. Then we can also do scale up and scale out in the according to our traffic. Then at last we studied about DNS, that is domain name system. And this is used to map a domain name to our IP so that when we hit the domain name, it will hit the IP and we will get the content. The various domain name providers are GoDaddy, Hostingers, BigGraph, and so many. So we created a VM and configure web server. Also, we create a DNS zone, give the name and add the record set. And when we search the name, it redirects to the web server. Chalo. Thank you, Sahil, I guess. Yes, sir. Yeah. Chalo. Thank you, Sahil. Yeah. So yesterday we were configuring a particular domain name with one of our servers. So it usually takes around 10 to 15 minutes to ideally reflect it on the web. So how many of you did try this out, means the domain name configuration, and you were able to create a particular domain name mapping with one of your IPs? How many of you? Okay, Anshuman was there. Adarsh, cloudspace.com. Okay. Anyone else? Only Chinmay. Chinmay, what was your domain? Sir, actually, I bought a domain from GoDaddy, which was my chinjack.co.in. So yesterday I did that. Okay, perfect. Okay, only Yeah. 3 out of 56, only 3 students. Anyone else? Anshuman, Chinmay, and Adarsh. Okay, so it usually takes around 10 to 15 minutes. For example, we were making yesterday Azure Silicon. What was that? Azure Silicon patch dot online. It was, I guess, for the batch 2, it was configured as. Let me check. I think so. I have deleted it as well. But the one of our
domain name was active yesterday, and then I deleted it. Let me check if it's active yet. It was in my see. This was what we hosted yesterday, Silicon Azure Batch 2.online. And for you guys, it was Silicon Azure Batch .online. Okay, it was Silicon Azure Batch 2.online. This was the thing yesterday. We hosted it out and we provided the domain name server, and we created the record set and redirected it to one of our IPs. And this in the backend of the IP, we configured this particular website. Okay, so usually takes around 5 to 10 minutes to reflect. So rather the first basic step is to get the name server from the provider to our own name servers, to whomsoever the cloud provider you want to configure with. Okay, so this was a very good thing that we tried. So Adarsh did was www.cloudsbay.com. Let's hit that as well. Is it running, Adarsh? Cloudsbay, yeah. Something is popping out. Okay, welcome to Cloudsbay. It's just a single HTML page, I guess. Okay, no issues. So and single click. okay, hi. Okay, got it. And Anshuman, what was yours? Sorry for the inconvenience. Anshuman, can you share yours domain? And Chinmay, what was yours? Chinmay dot? Sir, actually, it's not running. If you will Okay. hit that, it will not. Achha, Anshuman, you have also deleted it. Okay, no issues. Chalo. Okay, so I think so we have mostly covered from the Azure part of our topics. We are left with very few parts, and later on the later side of our course, we will be moving on with some of the DevOps concept, some of the DevOps concept that we really use in our industry, along with all the cloud platforms. So for the from the Azure point of view, we will be wrapping it off. Whatever topics that needs to be completed from the portal. So till date, you have done a lot of projects that you can show up in your resume as well, because these are some of the industry level applications or the project that you have done. For example, you did some deployments. See, you did deployments. You did migration. The migration again was from within the subscription and subscription to subscription. You now create how to manage a VM. You know about load balancers. You know how to configure a load balancer. You know how to give a DNS, how to register a domain name service and all. So actually, these are basically are the standard projects that we look upon on to have someone, if suppose they know the cloud platform services, then these are some of the projects that we look for. And these are some industry level projects as well. For example, the migration we did, the load balancer configuration, the DNS, the deployments. Now talk about Storage Explorer. We did the file sync. We did the mounting. So all these are very, very good projects that can be added in your resume, and these are considered to be very industry level projects. So what you can do is, suppose you really want to do a very big projects, you can just combine all this up and can create a very decent project. And you can just tell them that this is the complete package, or this is the complete project that I have done on the cloud platform. Including this one, you can also include the development part as well. If suppose any one of you is very much interested in the development as well, they can develop a web app or a mobile app, and they can just use all the services and can
and they can host it somewhere on your Azure portal. So this is a very good thing to have on. And if suppose you are in your early days of your third years, so you have an ample amount of time to plan out a particular big project and can showcase your skills over there. Okay. So these are the things that we use in the industry as well, and you know a lot about it as well. For the past few days, when the course kicked off, so as the course progressed on, you have known a lot of terminologies, and you have known a lot of services, and you know exactly how to use it for now. You know how to create a VNet. You know what is a VNet, a subnet, and what is the subscription resource groups. So you have an very, very, very decent information about the Azure cloud. Okay. So we are left with very few topics. So I will be just kicking it off with one or two of the topics, and we can rest for keep for tomorrow. Okay. So let's get started. So for today's class, we'll be looking for two topics. The first one is application gateway. And the second thing that we will be looking on, it would be Azure Active Directory. Okay, first let us understand what this application gateway is. Okay, so we were configuring हम लोग load balances बना रहे थे, that was being handled by ourselves. Means हम लोग वो खुद बना रहे थे load balancer. For example, अगर if suppose you want to see a version change, अगर तुम देखो तो for example हम पहले खुद virtual machine बना रहे थे, फिर उस पे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे थे. फिर कल आया ऐप सर्विस बोला कि देन जस्ट यू टेल मी दैट व्हाट काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन यू वांट एंड आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग. So application gateway is just kind of an enhancement of our load balancer. This application gateway is basically a load balancer with enhanced feature. See, Azure keeps on changing on its services, or rather enhancing its services. So basically this application gateway is an enhanced version of a load balancer. Okay, so we have to just deploy our servers on the application gateway, so it will handle the load balancing on its own with some advanced feature. It's not just load balancing, it will be many more things or many more futuristic over there. So we'll be looking one by one on it. Okay, so first of all, let's look into the types. So if suppose I talk about many more advanced features, means if suppose it has an load balancer of its own, so it might be auto scaling. What is auto scaling? Anyone auto scaling with the I talked a lot about auto scaling, scale out, scale in, please. Anyone? Okay, sir. Yes, so maybe the VMs that we are about to deploy, or the servers that we need required number of resources, that will be automatically deployed, and we don't have to worry about where the load balancer is going to map everything. Okay. And anyone else who was talking else? Sir, if the load increases, then it will scale in, and if it goes, if the load is less, it will scale out. Actually, it means when there hits a particular load to our load balancer, auto scaling does what auto scaling does is it what? Sorry, sir, the word I just can't say. It increases the Yes, sir. Yes, sir. It increases the VMs or decreases the VMs according to the load. Okay. Anyone else? Upgrades the infrastructure as per the need. Okay, perfect. Okay. Application gateway, if suppose there are some additional features, for example, अगर उसके पास load balancing है, it has auto scaling as well. Auto scaling करता क्या है? For example, based on our traffic, I hope the spelling is correct.
ठीक है, बेस्ड ऑन आवर ट्रैफिक मीन्स कितने क्लाइंट्स हमारे इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर को हिट कर रहे हैं, वो बेस्ड ऑन दिस ट्रैफिक this can either increase our instance or this can decrease our instance. For example, during the big billion days, if suppose they have an application gateway configured, then the auto scaling would be, if suppose the auto scaling is enabled, then the VMs or whatever servers they have deployed, that they can be scaled up. ठीक है, और देखो स्केलिंग का दो तरीका होता है, स्केल अप होता है और स्केल आउट होता है, आई गेस. ठीक है, देयर इज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस, मैं बताता हूँ. Auto scaling types. ठीक है, मैनुअल स्केलिंग, शेड्यूल्ड स्केलिंग, डायनेमिक स्केलिंग, प्रेडिक्टिव स्केलिंग. अच्छा, स्केल इन एंड स्केल आउट. ओके, ठीक है, दो तरीके का स्केलिंग होता है, एक स्केलिंग होता है और स्केल आउट होता है. ठीक है, स्केलिंग आउट मतलब क्या होता है? स्केलिंग आउट इज व्हेन यू ऐड मोर इंस्टेंसेस टू योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप. ठीक है, and scale in का मतलब होता है when you reduce the number of instances in your auto scaling group. So this is the difference, scale in and scale out. In a scale out policy that increases the capacity of the group by 30% and scale in policy that decreases the capacity of the group group to 2 instances. ठीक है, अब समझ में आ गया स्केल इन क्या होता है और स्केल आउट क्या होता है. ठीक है, और एक और कंसेप्ट होता है वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का. ठीक है, उसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. इसका मतलब होता है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग इज दैट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इन्वॉल्व्स एडिंग मोर मशीन्स और नोड्स टू अ सिस्टम, व्हाइल वर्टिकल स्केलिंग इन्वॉल्व्स एडिंग मोर पावर मतलब सीपीयू रैम स्टोरेज टू एन एग्जिस्टिंग मशीन. तो जब भी तुम्हें पूछे कि अगर ऑटो स्केलिंग का कितने सारे व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल, सो देयर आर बेसिकली स्केल इन एंड स्केल आउट. ठीक है, एंड what is the basic difference between horizontal scaling and vertical scaling? Horizontal scaling मतलब जब हम लोग और वर्चुअल मशीन वहां पे ऐड कर दे, और वर्टिकल स्केलिंग मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन है ना, उसी का पावर बढ़ा दे, सीपीयू बढ़ा दे, रैम बढ़ा दे, स्टोरेज बढ़ा दे. सो दैट इज So this is a very good concept. So everyone should know about vertical scaling and horizontal scaling. ठीक है. So एप्लीकेशन गेटवे क्या करता है? लोड बैलेंसर का काम तो करता ही है, ऑटो स्केलिंग भी करता है अपने एंड से. और क्या करता है ये हमें WAF. ठीक है, WAF का फुल फॉर्म होता है the full form of WAF, I think so it's wall as firewall, ऐसे कुछ होता है. वेब एप्लीकेशन फायरवॉल. ये हमें एक फायरवॉल क्रिएट करता है. वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये भी हमें इनेबल करके देता है. फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक मैनुअल लोड बैलेंसर है और इसके पास 3-4 VMs है. ठीक है, दिस इज योर लोड बैलेंसर. Traffic would be coming to the load balancer and it will be getting distributed to your virtual machines. ठीक है, अगर हम ये मैनुअली क्रिएट करेंगे तो हमें मैनुअली भी पता होना चाहिए कि whether this client request are genuine or not. See, देखो इंडस्ट्री में होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज वी हैव गूगल, इफ सपोज गूगल का हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, तो हो सकता है ना उसके राइवल कंपनीज क्या करें, कोई एक बॉट कॉन्फ़िगर करे और उसको पर सेकंड इतने रिक्वेस्ट भेजे अपने ओपोनेंट या फिर अपने कॉम्पिटिटिव वेबसाइट पे कि वो डाउन हो जाए. ठीक है, ये तो मैं बस एक बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि बॉट इस वेबसाइट को पर्टिकुलरली हिट करते जाए और ये वेबसाइट डाउन हो जाए. तो ये पता कैसे चलेगा कि ये बॉट से रिक्वेस्ट आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा जो फायरवॉल है ना, ये जो हमारा फायरवॉल होता है ना, WAF, दैट्स एन एडिशनल फीचर इन आवर एप्लीकेशन गेटवे. ये सब डिटेक्ट कर लेता है. फॉर एग्जांपल, कोई अगर मान लो HTTP से रिक्वेस्ट कर रहा है, HTTP इज अनसिक्योर, दिस इज पोर्ट 80. अगर कोई HTTP से ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसे HTTPS पे रिडायरेक्ट करना है. दैट्स द वर्क ऑफ WAF. ये जो हमारा फायरवॉल बनता है ना, ये हमें इस एप्लीकेशन गेटवे में इनहांस्ड फीचर में हमें ये पता चल जाता है. ठीक है, तो ये सब बॉट के रिक्वेस्ट को ये ऑटोमेटिक ये कैंसिल कर देगा.
it won't allow to do a simple request to our load balancers. If suppose it's a bot request, or rather if suppose the HTTP है, then it will redirect the particular client to the HTTPS. ठीक है? HTTP is basically, what's the full form of HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. And what is HTTPS? HTTPS, S for secure. अब बताओ, ये जो HTTP होता है ना, that is port 80 and this HTTPS is port 443 I guess. ठीक है? अब बताओ सिक्योर कौन सा है? दोनों तो एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना. प्रोटोकॉल समझते हो एवरीवन? देखो हमारा डेटा जिस फॉर्म पे फ्रॉम आवर क्लाइंट सर्वर, फ्रॉम आवर मतलब कि हमारे रिक्वेस्ट को जिस फॉर्म पे रिस्पॉन्स पे लेके जाता है. फॉर एग्जांपल हमने हिट किया है, फॉर एग्जांपल हमने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन किया है, तो विद इन दी वेब हमारा यूजर नेम और पासवर्ड उस सर्वर पे जा रहा है. ठीक है? तो एक प्रोटोकॉल के तहत जाता है वो. ठीक है? अगर वो HTTP प्रोटोकॉल है जो कि अनसिक्योर माना जाता है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ अनसिक्योर प्रोटोकॉल. सो एनीवन, जब भी हमारा अगर मान लो डेटा हमारे क्लाइंट सर्वर के पास मतलब कि हमारे मशीन से सर्वर के मशीन पे जा रहा है वाया HTTP, तो हो सकता है जब हमारा डेटा यहाँ से जा रहा होगा तो हो सकता है बीच में कोई हमारे डेटा को टैप करके हमारे डेटा को चुरा सकता है. दे कैन स्टील आवर डेटा. ठीक है? बिकॉज इट्स फॉलोइंग एन HTTP प्रोटोकॉल. ये जो यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है ना, लॉक सिंबल, ठीक है, ये कह रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर. ठीक है? ये कनेक्शन सिक्योर क्यों बोल रहा है? बिकॉज ये जो हमारा whiteboard.office.com है ना, ये बैकएंड में HTTPS प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है. और फॉर एग्जांपल अगर किसी ने HTTPS कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, देन दैट पाथ इज कंसिडर्ड टू बी सिक्योर. हमारा डेटा यहाँ पे जो भी जाएगा ना, दैट डेटा गोज इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्म. एक तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है एंड नोबडी कैन टैप इट इन बिटवीन. होते हैं साइबर सिक्योरिटी अटैक्स तो होते ही हैं, बट दिस HTTPS इज कंसिडर्ड टू बी द सिक्योर प्रोटोकॉल. अब अगर मान लो कोई एक क्लाइंट आया, सपोज माय डोमेन नेम इज silicon.com, माय डोमेन नेम इज silicon.com. और अगर मान लो कि वो क्लाइंट जो आ रहा है वो ये अपने प्रीफिक्स पे HTTP लगा दिया. अब HTTP लगा दिया तो अब तो ये मेरे को पता है कि दिस इज नॉट सिक्योर. ठीक है? तो इस WAF के मदद से ये हमारा जो है ना, ये HTTP को हम HTTPS में रीडायरेक्ट करते हैं. जैसे अगर वो HTTP silicon.com करेगा, then I have to redirect him to https/silicon.com, www.silicon.com. ठीक है? क्योंकि अब हम यूजर को थोड़ी ना बोल सकते भाई इसमें S लगाओ तब तुम यहाँ पे आओगे, हमें उसे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा. दीज आर सम ऑफ द एडिशनल फीचर जो हमारा एप्लीकेशन गेटवे देता है. ठीक है? तो चलो इसके बारे में और देखते हैं कि ये क्या क्या देता है. लेट मी डिलीट दिस. चलो पहले इसके टाइप्स देखते हैं. एप्लीकेशन गेटवे के टाइप्स कितने होते हैं? अरे यार, give me a minute. सो अगर एप्लीकेशन गेटवे का देखो तो एप्लीकेशन गेटवे के हमारे 4 काइंड्स होते हैं. ठीक है? द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, द सेकंड वन इज
चलो ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे। पहले इसके कितने काइंड्स होते हैं वो देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड V2, the third one is WAF, and the fourth one is WAF V2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरे को सिर्फ लोड बैलेंसर देगा। दिस स्टैंडर्ड V2 विल गिव मी लोड बैलेंसर प्लस ऑटो स्केलिंग। ठीक है, WAF विल गिव मी लोड बैलेंसर प्लस फायरवॉल, एंड दिस WAF V2 विल गिव मी लोड बैलेंसर भी देगा हमें, फायरवॉल भी देगा, एंड सम एडिशनल फीचर एज वेल, और हमें ये ऑटो स्केलिंग भी देगा। ठीक है, सो इट विल गिव मी लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग प्लस फायरवॉल और WAF पूरा बोल लो। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे के हमने फीचर्स में क्या देखा। ठीक है, अब इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स, द फर्स्ट फीचर इज कुकीज बेस्ड अफिनिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे, बट you have to know the terminology. The first one is cookie based affinity, the second is connection draining, थर्ड हमारा जो फीचर होता है एप्लीकेशन गेटवे का वो होता है मल्टी साइट होस्टिंग। द फोर्थ फीचर इज SSL offloading, SSL offloading। The fifth one you can consider as HTTP to HTTPS redirection। ये सब कुछ अपने एंड पे हैंडल करता है, रीडायरेक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कनेक्शन ट्रेनिंग भी बताएंगे। मल्टी साइट होस्टिंग, जब भी हमारे मतलब कि एक एप्लीकेशन पे बहुत सारे मल्टीपल साइट्स होस्टेड हैं तो उसे मल्टीपल साइट होस्टिंग बोलते हैं। SSL ऑफलोडिंग क्या होता है ये मैं बताता हूँ। HTTP to HTTPS मैंने अभी बताया। ठीक है, SSL ऑफलोडिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, इनिशियली जब हम लोग एक पर्टिकुलर वेबसाइट को हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ सपोज वी हिट द आदर्श वेबसाइट, व्हाट वाज द आदर्श वेबसाइट, cloudsbay.com। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आदर्श ने अपने वर्चुअल मशीन पे या अपने लोड बैलेंसर पे एक SSL सर्टिफिकेट ठीक है, ये SSL सर्टिफिकेट उसने वहां पे डाला नहीं है। ठीक है, ये SSL ऑफलोडिंग फीचर हमें इनेबल करता है कि हो सकता है कि अगर हम एक अगर मान लो कि अगर तुम्हारा एक छोटा ही एप्लीकेशन है जिसमें तुम्हारा एक सर्वर है, ठीक है, तो वहां पे तो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने का फिजिबिलिटी है ही नहीं। So what we will be doing, we will be uploading a SSL certificate to our virtual machine or rather to our web server जो हमारे वर्चुअल मशीन पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो वो जैसे वो SSL को अपलोड कर देंगे, सो हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें SSL सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स इनक्रिप्ट करके कुछ होता है, लेट्स इनक्रिप्ट। ठीक है, ये हमें वो प्रोवाइड करवाता है। या फिर अगर मान लो कोई मेरे बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो व्हाट वी कैन डू, हम अपने लोड बैलेंसर को ही एक SSL सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज SSL ऑफलोडिंग, कि हम कैसे एक वेब सर्वर या फिर एक लोड बैलेंसर को SSL सर्टिफिकेट देंगे, तब जाके ये लॉक सिंबल इनेबल होता है। जब भी एक SSL सर्टिफिकेट एक सर्वर को मिलता है, देन ओनली आवर कनेक्शन इज सिक्योर्ड। अभी देखो, अभी ये cloudsbay.com पे हमारा SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कनेक्शन इज नॉट सिक्योर्ड। तो जो हम लोग कुछ भी अगर इस क्लाउड्स पे
वेबसाइट पे अगर सपोज हम लॉगिन करना चाहें, अगर इसके पास लॉगिन यूजर का डैशबोर्ड होता है या फिर एक साइन अप पेज होता, अगर हम उसमें लॉगिन करते हैं नीतीश और अगर हम उसमें पासवर्ड देते हैं नीतीश@3435, देन विद इन दी ऑन द इंटरनेट वो ना वैसे ही फ्लाई करता, नेम इक्वल टू इतना एंड यूजर नेम इक्वल टू नीतीश@123, और बीच में हो सकता था कोई एक साइबर अटैकर वहां पे क्या करता, उसको डेटा को टैप कर लेता कि अच्छा इसका तो ये डेटा है, इसको उठाओ यहाँ से, एंड देन ही कैन जस्ट मैनिपुलेट इट एवरीवेयर। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इफ सपोज अगर वो एक HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो करता है, रादर मतलब इसके पास एक SSL सर्टिफिकेट होता है, देन मेरा यूजर नेम और पासवर्ड इट विल ऑलवेज गो इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, और बीच में अगर कोई टैप भी कर लेना वो उसे कभी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, एवरीवन क्लियर? एवरीवन? Yes, sir. चलो चलो एक काम करते हैं, एप्लीकेशन गेटवे बनाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे बनाते हैं। उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन रहेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, हमारा एक वीनेट रहेगा। ठीक है, एक वीनेट रहेगा और उसके अंदर 2 सबनेट रहेंगे, 2 सबनेट। उसमें से जो एक सबनेट होगा ना, दिस विल बी आवर वीनेट। ठीक है, this will be your subnet 1 and this will be your subnet 2। ठीक है, तो इसमें से जो एक सबनेट होगा ना, this will be purely dedicated for our application gateway, application gateway। ठीक है, और ये जो सबनेट 1 रहेगा, here we will be configuring our VMs। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज हम लोग यहाँ पे 2 VM बना देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये अजूर पोर्टल पे आते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, इस रिसोर्स ग्रुप का नाम रखते हैं गेटवे RG, और इसे हम डिप्लॉय करते हैं सेंट्रल इंडिया पे। कहीं दिख रहा है क्या सेंट्रल इंडिया? ठीक है, गेटवे RG सेंट्रल इंडिया, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, वैलिडेशन पास्ट क्रिएट करते हैं। अब वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट है वर्चुअल नेटवर्क। रिसोर्स ग्रुप गेटवे RG रहेगा, नेम रहेगा मेरा गेटवे वीनेट, गेटवे वीनेट। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया पे रहेगा। नेक्स्ट IP एड्रेस, तो डिफॉल्ट वाले को डिलीट करते हैं और 2 सबनेट बनाना है। ठीक है, पहला सबनेट रहेगा मेरा VM का सबनेट रहेगा, VM सबनेट। इसे एड्रेस रेंज दे देते हैं 10.0.1.0/24, ऐड कर दो, और एक और सबनेट ऐड कर दो, वो गेटवे का सबनेट रहेगा, गेटवे सबनेट। ठीक है, इसे दे दो 10.0.2.0/24। सही है एवरीवन? नेक्स्ट सिक्योरिटी, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। अब इसे डिप्लॉय करते हैं। चलो वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट। चलो देख लेते हैं हमारा 2 सबनेट बना है कि नहीं बना है। ठीक है, वी हैव आवर 2 सबनेट, VM सबनेट एंड गेटवे सबनेट। ठीक है, चलो अब अपने होम पे जाते हैं। लेट्स कॉन्फ़िगर अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये गेटवे RG में रहेगा। वर्चुअल मशीन का नाम रहेगा, पहला VM1 बनाते हैं,
और इसे कर देते हैं ubuntu इतना, सेंट्रल इंडिया पे रहने देते हैं। गो फॉर पासवर्ड, यूजर नेम सिलिकन, पासवर्ड कर देते हैं पासवर्ड @123, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड @123। ठीक है, देखो HTTP का पोर्ट 80 होता है, HTTPS का पोर्ट 443 होता है। नेक्स्ट पे करते हैं, नेटवर्किंग भी चलते हैं। गेटवे वीनेट, और इसका जो हमने सबनेट रखा था उसके लिए रखा था VM सबनेट। ठीक है, ये VM1 IP बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस, टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट, वेट फॉर द वैलिडेशन। चलो क्लिक ऑन क्रिएट। चलो एक और VM बना लेते हैं, क्योंकि लोड बैलेंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है लोड बैलेंस, उसके लिए तो कम से कम 2 वर्चुअल मशीन चाहिए ना। क्लिक ऑन क्रिएट अजोर गेटवे RG, ये रहेगा मेरा VM2, ये रहने दो सब कुछ। क्लिक ऑन पासवर्ड, सिलिकन, पासवर्ड @123, पासवर्ड @123। चलो ठीक है, अलाउ एवरीथिंग। नेक्स्ट टास्क नेटवर्किंग, ये वापस से हम अपने VM सबनेट पे ही बनाएंगे इसे। नन नन नन, ठीक है, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस्ड, टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। चलो वेट करते हैं, क्रिएट। चलो ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, हमारा एक रिसोर्स रेडी हो गया। हम एक काम करते हैं, इस पे हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एट द अर्लीस्ट। ठीक है, ये पहला टर्मिनल है। अब पासवर्ड हमने किया है तो SSH-i-p। चलो यस कर देते हैं। पासवर्ड इज पासवर्ड @123। चलो सुपर यूजर बन जाते हैं पहले। sudo su cd, क्या था, apt इंस्टॉल, apt इंस्टॉल apache q, यस। चलो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं cd के अंदर var, मतलब cd var के अंदर www/html। ठीक है, यहाँ पे जो ls है index.html, इसको करते हैं echo hello from VM1, hello from VM1, और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं index.html में। ठीक है, क्लियर करते हैं, देख लेते हैं आया कि नहीं आया। क्लिक ऑन ls index.html cat index.html। चलो हेलो फ्रॉम VM1 आ रहा है। ठीक है, इन द मीन टाइम हमारा दूसरा सर्वर भी डिप्लॉय हो गया होगा। ठीक है, गो टू रिसोर्स, ये देखो VM2 है, इसे भी कनेक्ट करते हैं और इस पर भी वेब सर्वर बनाते हैं। यस, चलो यहाँ भी हम हो जाते हैं sudo su cd apt install apache 2, यस। चलो तब तक देख लेते हैं कि जो मेरा VM1 है, जो हमारा VM1 है उसके IP पे हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस वन इज VM1 और VM1 का पब्लिक IP है 20.193।
.241 कॉपी करते हैं और देखते हैं। चलो हेलो फ्रॉम VM1 आ रहा है। अब यहाँ भी चलते हैं हम cd var www, ये VM2 पे हम जा रहे हैं, ठीक है। HTML यहाँ ls करते हैं, index.html है, clear it all। अब यहाँ पे लिखते हैं हम echo hello from VM2 और इसे इंसर्ट कर देते हैं index.html, ठीक है। systemctl start apache 2 सिस्टम। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि जब भी तुम कुछ चेंजेस करो अपने फाइल्स में, देन यू शुड ऑलवेज डू systemctl start apache 2 एंड systemctl enable apache 2। चलो द सेम गोज फॉर, यहाँ पे कर देते हैं हम systemctl start apache 2 systemctl enable apache 2। चलो ये हमारा VM1 तो आ रहा है, सेम गोज फॉर VM2 भी आना चाहिए। ये रहा हमारा VM2 20.204.1.155.14। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सो आवर बोथ द VMs आर नाउ कॉन्फ़िगर्ड एवरीवन। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो तो हमारा दोनों VM रेडी हो गया है। अब हमारा काम क्या बचा, अब हमने अभी तक एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। मैं होम पे जाऊंगा, आई विल सर्च फॉर गेटवे। सी यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे आ रहा है, इसे क्लिक करना है। अभी हमारे पास एक भी एप्लीकेशन गेटवे नहीं है, ठीक है। सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। चलो दिख रहा है क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे। ये देखो लोड बैलेंसिंग का ही इनहैंसमेंट है, इसलिए बोलता है लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशन गेटवे। कौन से रिसोर्स ग्रुप में रखना है, आई वांट टू से इट वुड बी इन गेटवे RG। एप्लीकेशन गेटवे का नाम क्या रहेगा, मैं बोलता हूँ माई एप्लीकेशन गेटवे सेंट्रल इंडिया। ये देखो टीयर कौन सा है, मैं भी बता रहा था ना, स्टैंडर्ड V2 WAF V2, ठीक है। अब तुमको इसमें डिफरेंस भी पता है कि स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड V2 में क्या होगा, WAF में क्या होगा, WAF V2 में क्या होगा। सो मैं चलता हूँ स्टैंडर्ड V2 के साथ। इनेबल ऑटो स्केलिंग यस कर देते हैं। मिनिमम इंस्टेंस काउंट हम बोलते हैं तुम्हारे पास एक इंस्टेंस काउंट तो रहेगा, एंड मैक्सिमम इंस्टेंस काउंट वुड बी 10, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन नन कर देते हैं, HTTP2 डिसेबल कर देते हैं। वर्चुअल नेटवर्क, कौन से वर्चुअल नेटवर्क पे रहेगा, ये मेरा गेटवे वीनेट में रहेगा। और गेटवे वीनेट के किस सबनेट में रहेगा, गेटवे सबनेट में रहेगा, जो हमने एक डेडिकेटली बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट गो टू फ्रंट एंड। अब तुम्हें पता है कि लोड बैलेंसर का भी एक पब्लिक आईपी होता है, तो ये पब्लिक आईपी मेरे को चूज करने बोलेगा, या फिर मेरे पास अगर है नहीं देन आई कैन चूज एनी वन ऑफ द VMs पब्लिक आईपी, बट लेट्स क्रिएट अ न्यू पब्लिक आईपी। इट शुड बी माई गेटवे IP, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बनेगा, SKU स्टैंडर्ड होगा, असाइनमेंट स्टैटिक होगा। क्लिक ऑन ओके। चलो नेक्स्ट, चलो बैकएंड पे चलते हैं। कोई बैकएंड पूल एडेड नहीं है, हमने बैकएंड में अभी किसी सर्वर से ऐड नहीं किया है। ऐड अ बैकएंड पूल, माई बैकएंड पूल, ठीक है। अभी हम जो बैकएंड पूल में इसके टारगेट्स होंगे ना, वो बाद में हम करेंगे, बाद में कन्फिगर करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सेव इट। चलो नेक्स्ट चलता है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। इसके पास राउटिंग रूल नहीं है, मतलब कि ये राउट होके कहाँ जाएगा, तो हम लोग इसमें एक राउटिंग रूल ऐड कर देते हैं। इट वुड बी माई रूल, प्रायोरिटी 100 सेट कर देते हैं। लिसनर नेम माई लिसनर,
ठीक है। फ्रंट एंड आईपी पब्लिक है, HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, पोर्ट 80 पे हिट करेगा। ये पूछ रहा है क्या ये मल्टी साइट है या फिर बेसिक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक साइट है क्योंकि इसमें बस एक ही वेबसाइट है। ठीक है, ये बोलेगा बैकएंड में कुछ टारगेट एडेड नहीं है, तो मैं बोलूंगा बैकएंड टारगेट वुड बी माय बैकएंड पुल एंड बैकएंड सेटिंग भी बनाना पड़ेगा, तो ऐड न्यू बैकएंड सेटिंग, इट वुड बी माय सेटिंग्स। ठीक है, ये सब डिसेबल करके चलेगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट 20 सेकेंड्स है। ठीक है, ठीक है, लेट इट एड इट इज। ठीक है, अब चलो इसको ऐड करते हैं। चलो अब हमारा एक माई रूल ऐड हो गया है। गो टू नेक्स्ट टैग्स, गो टू रिव्यू एंड क्रिएट। अब इसे डिप्लॉय करते हैं। दिस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट टेक्स अ लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये एप्लीकेशन गेटवे बैकएंड में बहुत सारी चीजें करता है, इसलिए इसका डिप्लॉयमेंट टाइम में काफी टाइम लगता है। वी विल बी वेटिंग फॉर इट्स डिप्लॉयमेंट। देखते हैं कितने देर में डिप्लॉय होता है ये। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। अभी तक हमने इसके बैकएंड पे हमने इसे सर्वर अटैच नहीं किया है। जब भी डिप्लॉय हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग इसके बैकएंड पे जाके सर्वर अटैच कर देंगे। ठीक है, जब हम पे सर्वर अटैच करेंगे तो देन यू विल बी गेटिंग टू नो कि हम कितने काइंड ऑफ एन सर्वर इसको अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अज्योर में ही हमारे वेब सर्वर्स हैं तो वो तो हम अटैच कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी अलग क्लाउड सर्विसेज पे अगर हमारे वर्चुअल मशीन हैं, फॉर एग्जांपल अज्योर पे सॉरी AWS पे है या फिर गूगल GCP पे है, देन ऑल्सो वी कैन अटैच दैट। तो ये हमें इतना एडवांटेज देता है कि मल्टीपल cloud providers hosted virtual machines, you can also attach this to your application gateway. Manish Kumar, are you there? Manish Kumar, 21 BCS D90. Manish Kumar. Sabyasachi Nanda. Sabyasachi Nanda. Yes, sir. So Sabyasachi, I just have an small question for you. Sabyasachi Nanda, हमने एक बेसिक लोड बैलेंसर बनाया था और एक स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर बनाया था, राइट? Yes. कुछ बेसिक डिफरेंस याद है क्या? सर बेसिक लोड बैलेंसर में लिमिटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्चुअल मशीन हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन ऐड कर सकते हैं। और
Anyone else? Anyone else? सर बेसिक में सिक्योरिटी नहीं होता है लेकिन स्टैंडर्ड में सिक्योरिटी। ठीक है, और भी कुछ था, एक बेसिक से डिफरेंस था। Basic IP and standard IP. Yes. Pritam Nanda, you can unmute and say. Pritam Nanda, please unmute and say. Mic problem. Network is not good. चलो ठीक है। एनीवेज आवर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड नाउ। अब मैं चलता हूँ अपने एप्लीकेशन गेटवे पे। इफ सपोज यू गो टू द एप्लीकेशन गेटवे, नाउ यू हैव माय एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर्ड। अब अपने ओवरव्यू पे आओगे, सो इसे एक फ्रंट एंड आईपी मिला हुआ है। गो टू, चलो पहले चेक करते हैं कि इसके फ्रंट एंड आईपी को अगर हिट करे तो क्या आता है। अभी क्या आता है, अभी तक हमने कोई से बैक एंड सर्वर अभी इस पे अटैच नहीं किया है। लेट अस, चलो ये आ रहा है 502 बैड गेटवे। ठीक है, बैड गेटवे आ रहा है क्योंकि इसके पास कुछ सर्वर ही नहीं है, इसको दिखाने के लिए, दिखाने के पास कुछ है ही नहीं, बस इसके पास एक फ्रंट एंड आईपी मिला हुआ है। ठीक है, आई गो बैक टू माय पोर्टल। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बैकएंड पूल्स पे, शायद क्लिक ऑन बैकएंड पूल्स। अब देखोगे, अब ये बोल रहा है कि ऐड बैकएंड पूल। ठीक है, यहाँ पे टारगेट पूछ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ टारगेट तुम्हारा वर्चुअल मशीन होने वाला है। ठीक है, और वर्चुअल मशीन पहले हम देते हैं VM1 के वर्चुअल मशीन, फिर हम बोलते हैं कि सेकंड टारगेट भी तुम्हारा वर्चुअल मशीन होने वाला है, और इसे हम देते हैं VM2। ठीक है, ये VM1 हो गया, ये VM2 हो गया। ठीक है, क्लिक ऑन सेव। अब हमने बैकएंड पूल पे इसे हमने दे दिया है। अब तुम इसको अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो ये बोल रहा है आईपी एड्रेस और FQDON वर्चुअल मशीन ऐप सर्विसेज। तो ये आईपी एड्रेस कहीं का भी हो सकता है ना, ये AWS का भी हो सकता है, GCP का भी हो सकता है। वी कैन अटैच n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स टू आवर बैकएंड पूल। अब चलो, अब तो मेरा ये कॉन्फ़िगर हो गया। क्लिक ऑन कैंसिल। चलो अब हम चलते हैं इसके ऊपर और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। चलो VM1 आया, बहुत बढ़िया। इसके VM1 आया, फिर VM1 VM2 VM1 VM2 VM1 VM2 VM1 VM2। चलो मैं इसके आईपी को भेज रहा हूँ और बताओ कि लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एवरीवन, दिस इज द आईपी ऑफ आवर एप्लीकेशन गेटवे। चलो यार बताओ Yes, sir. क्या हो रहा है। So VM1 VM1 और VM2 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही आईपी से हमारा दो कंटेंट तो बन रहा है, मतलब हमारा लोड बैलेंस हो रहा है। अरे बाकी लोग भी बताओ यार। Yes, sir. It shows hello from VM1 and hello from VM2. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो, ये हमने बैलेंसर तो कहीं बनाया नहीं, लोड बैलेंसर हमने तो एप्लीकेशन गेटवे बनाया, लेकिन ये बैकएंड पे क्या कर रहा है, ये बैकएंड पे लोड बैलेंसिंग कर रहा है। ठीक है, अब चलो अब मैं बताता हूँ SSL सेटिंग्स पे। तुम SSL सेटिंग्स पे यहाँ पे SSL प्रोफाइल अगर डाल दोगे और अपने इस आईपी को इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के आईपी पे अगर तुम इस SSL प्रोफाइल को बाइंड कर देते हो, तो ये हमारा जो अभी नॉट सिक्योर दिखा रहा है, ये हमारा सिक्योर दिखाने लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया SSL सेटिंग से। नाउ अब हम कुछ और देखते हैं। हेल्थ प्रोब्स हम सेट कर सकते हैं कि ये हेल्दी है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट एल्स, बैकएंड सेटिंग्स पे तो कुछ नहीं, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे ये रहा मेरा कॉन्फ़िगरेशन। चलो फाइनली अब चलते हैं WAF पे, वेब एप्लीकेशन। अच्छा, ये फायरवॉल करने के लिए हमें टीयर को स्टैंडर्ड V2 से WAF वर्जन 2 पे लेके जाना है। ठीक है, चलो लेके चलते हैं, क्रिएट न्यू करते हैं। ये देखो आया यहाँ पे ऐड बॉट प्रोटेक्शन एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, ये क्या करता है, इन एडिशन टू डिफॉल्ट सेटिंग्स टर्न ऑन बॉट प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैलिशियस बॉट्स।
तो बॉट्स, अच्छा हाँ, और भी बताना था तुम्हें, ठीक है। देखो, मैलिशियस अटैक सच एज एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड अदर OSAP's टॉप 10 थ्रेट्स कुड कॉज सर्विसेज आउटेज और डेटा लॉस। ठीक है, ये सारे मेरे साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट है। एसक्यूएल इंजेक्शन से हम देखते हैं कि डेटा लॉस हो रहा है क्या, या फिर डेटा इंजेक्ट हो रहा है कहीं पे, कुछ डेटा लीक है क्या। दिस एक्सेस इज अगेन समथिंग स्क्रिप्टिंग, जिससे हमारा पता चलता है कि हमारे वेबसाइट्स पे कुछ अवेलेबल डेटा है कि नहीं है, मतलब अवेलेबल डेटा मतलब कुछ लीक डेटा है कि नहीं है। तो ये सारे चीज जो है ना, ये सारे चीज मोस्टली हमारे सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी इंजीनियर्स। अभी तुम लोग काफी देर सुन रहे होगे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स। तो ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स ये सारी चीज देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक मैं बात बताना चाहता हूँ, आज मार्केट डिमांड करता है कि तुम्हें डेवऑप्स का तो नॉलेज होना ही चाहिए। डेवऑप्स जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में, तुम्हें डेवऑप्स का तो नॉलेज होना ही चाहिए, तुम्हें प्लस सिक्योरिटी का भी नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ कंपनीज मैंडेटरी कर रही हैं कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सब कुछ तुम्हें ही देखना है। अगर तुम्हें ये सब चीज पढ़ना है तो तुम्हें डेवऑप्स आनी चाहिए और तुम्हें सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। इसलिए मार्केट में अभी एक नया प्रोफाइल बन रहा है, डेव सेक ऑप्स। ठीक है, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ऑपरेशन से जो भी बोल लो, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेव सेक ऑप्स। ठीक है, जिन्हें सिक्योरिटी भी आता है। तो ये WF पे नहीं करते हैं, बैक चलते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तुम्हें और बताना था बैकएंड सेटिंग्स में, देखता हूँ। ओके, चलो, हाँ ये बताना था, क्या क्या मिस हो गया था हमारा, कुकी बेस्ड एफिनिटी, ये अभी बताना बाकी था, कनेक्शन ट्रेनिंग बताना बाकी था। ठीक है, अब तुम माई बैकएंड सेटिंग्स पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कुकी बेस्ड एफिनिटी। चलो ये देखते हैं कहता क्या है। कुकी बेस्ड एफिनिटी, ठीक है, इसे हटाते हैं। जब भी तुम लोग कोई वेबसाइट खोलते होगे तो वहां पे लिखता होगा ना एक्सेप्ट कुकीज। ठीक है, तो कुकी बेस्ड एफिनिटी का मतलब ये कहता है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा लोड बैलेंसर है एंड हियर वाज योर 2 सर्वर्स। ठीक है, और तुम्हारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट अगर मान लो यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए, देन ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कुकी बेस्ड एफिनिटी हम लोग इनेबल करते हैं, जब भी हम लोग इनेबल करते हैं कुकी बेस्ड एफिनिटी, तो इसका मतलब होता है फॉर सम मोमेंट और फॉर सम टाइम, इफ सपोज अगर ये मेरा इनेबल्ड है, कुकी बेस्ड एफिनिटी अगर इनेबल्ड है, तो हो सकता है कि अगर इस रिक्वेस्ट को इस सर्वर ने सर्व किया होगा। ठीक है, और ये कुकी मतलब होता है ना कि एक स्मॉल काइंड ऑफ एन डेटा, या फिर कुछ डेफिनेशन देखते हैं, तो ये ना फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और फॉर द नेक्स्ट सम टाइम, यही ये सर्वर 1 इसको सर्व करता रहेगा। इफ सपोज माई कुकी बेस्ड एफिनिटी इज ऑन, ठीक है, तो मतलब फॉर सम टाइम हमारा यहाँ पे सेशन परसिस्ट कर जाएगा। लेकिन अभी हमारे एक सर्वर पे क्या हो रहा है, हम जैसे ही रिलोड कर रहे हैं वो VM2 VM1 पे स्विच करता जा रहा है, VM1 VM2 पे स्विच करता जा रहा है। तो अब समझ में आया कि कुकी बेस्ड एफिनिटी क्या करता है, कि अगर मान लो मेरा ये रिक्वेस्ट को अगर ये सर्वर ने मेरे को सर्व किया है, तो फॉर सम टाइम जब तक वो कुकी एक्सपायर नहीं कर जाता है। फॉर एग्जांपल तुम लोग देखे होगे कि तुम्हें हर बार किसी वेबसाइट में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बार लॉगिन कर दो, यू लॉगिन फॉर द वन टाइम एंड यू कैन जस्ट परसिस्ट द सेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अभी लिंक्डइन पे मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं linkedin.com बस पे हिट कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग माई वेबसाइट्स, मतलब कि मेरे को अब मेरा फीड मिल रहा है। सी दिस इज माई फीड। तो इसने कुछ तो कुकी में सेव करके रखा होगा। पहले देखते हैं व्हाट इज कुकी। व्हाट इज कुकीज? ठीक है, कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स विद स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये जो कुकी होता है ना, ये बहुत स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा अपने पास स्टोर कर रखता है। हो सकता है कि लिंक्डइन पे जब मैंने इनिशियली जब लॉगिन किया होगा कुछ दिन पहले, तो वो अपने पास ये यूजर नेम और लॉगिन
यूजर नेम और पासवर्ड रख लिया होगा, इसलिए ये मेरे को डायरेक्टली लॉग इन करने दे रहा है। द सेम गोज फॉर अदर अकाउंट्स, which other account should I tell you about? Mindfire Mail, YouTube पे भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। देखो इसने मेरे को लॉगिन करके रखा हुआ है, सी, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब होता है कुकी। तो अगर हम इसे इनेबल कर दें, ठीक है, मैं इसे इनेबल करता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं इनेबल करता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सब लोग अपने सर्वर को हिट करो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मैं सर्वर को हिट किया और ये मेरे को VM1 दिया, फिर मैं हिट किया VM1 दिया, सी, अब देखो अब मेरा यहाँ पे ये सेशन परसिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब सब लोग फिर से हिट करो और देखो तो अब सेशन परसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एवरीवन hit the same IP and see whether the VMs are changing or not. Everyone, यार, everyone. I want interaction. No, sir. Change कर रहा है क्षितिज ट्राई रीलोडिंग इट, मतलब रिफ्रेश करो। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी देखो मेरा VM1 का VM1 ही रह रहा है, सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है ना। किसी का VM2 पे स्टक किया होगा, किसी का VM1 पे स्टक किया होगा, राइट। अंशुमन तुम्हारा किस पे VM है, VM1 पे कि VM2 पे? VM2, चलो ठीक है भाई, 4-5 लोग ही इंटरैक्ट कर रहे हो यार, आउट ऑफ 75, दिस इज वेरी बैड। ओनली VM1 दिखा रहा है। ठीक है, ओनली VM1 दिखा रहा है। चलो और भी बताओ मेरे को। अभिषेक पात्रो, VM2 है। ठीक है। सौरभ कुमार, VM1। आदित्य जायसवाल, आदित्य जायसवाल ने अपना ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया है। अंशुमन सतपति ने भी अपना ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया है। अनिकेत सिंह, यस सर। क्या VM1 आ रहा है कि VM2 आ रहा है? VM1। VM1 आ रहा है, यस। ठीक है। अब सब समझ गए। हमने जैसे ही कुकी बेस्ड एफिनिटी को हमने ऑन किया तो वो हमारा कुछ देर तक सर्वर को उसी सर्वर से रिस्पांस भेजता रहेगा, ठीक है। चलो, अच्छा बहुत लोगों ने भेजा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। VM1 VM1 VM2 VM2 VM1 VM2, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको कि जब भी हमारा ये कुकी बेस्ड एफिनिटी अगर ऑन रहेगा तो हमारा कुछ देर तक ये सर्वर हम एक कनेक्शन को परसिस्ट करके रखता है, ठीक है। कि इस सर्वर ने अभी जस्ट इसे सर्व किया है, देन वी कैन सर्व इट फॉर मोर टाइम, क्योंकि ये इसका कनेक्शन अलाइव है। चलो, अब इसका मतलब समझ में आ गया कुकी बेस्ड एफिनिटी क्या होता है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज कनेक्शन ड्रेनिंग, ठीक है। कनेक्शन ड्रेनिंग, अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, कनेक्शन ड्रेनिंग का मतलब ये होता है, मान लो कि ये मेरा VM1 है और ये मेरा VM2 है, ठीक है। कनेक्शन ड्रेनिंग का मतलब होता है कि फॉर सम रीजन अगर मान लो तुम्हारे VM1 में तुमको कुछ चेंजेस करना है, तो तुम्हें इसे डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है, कुछ डेटा चेंजेस है, तो तुम्हें इसे डाउन करना पड़ेगा। डाउन मतलब इन द सेंस तुम्हें इसे स्टॉप करना पड़ेगा। अब जब तुम इसे स्टॉप कर रहे होगे तब तुम्हें तो पता नहीं ना कि ये VM हो सकता है कि किसी एक रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा होगा। तो अगर इमीडिएटली अगर तुम स्टॉप कर दोगे तो ये रिक्वेस्ट तो जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा था उससे तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने VM को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो कनेक्शन ड्रेनिंग का एक जनरल डेफिनेशन ये होता है कि फॉर कनेक्शन ड्रेनिंग का मतलब ये होता है कि इस VM के डाउन जाने से पहले, मींस इसे स्टॉप जाने से पहले, अगर हम इसे स्टॉप कर रहे हैं उससे पहले ये कम से कम फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम एक्टिव रहेगा, ठीक है। फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम एक्टिव रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे इसे सर्व कर रहा होगा, तो उसे कम से कम सर्व कंप्लीट कर ले। लेकिन इन द मीन टाइम ये ऐसी कनेक्शन ड्रेनिंग में घुस जाएगा
ये मीन टाइम ये न्यू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझे एवरीवन? Yes. ठीक है, तो इसका मतलब ये कहा कि अगर मान लो हम कनेक्शन ड्रेनिंग इनेबल करते हैं तो फॉर सम टाइम, जब ये डाउन हम लोग ये करने वाले हैं, फॉर सम टाइम, लेट्स सपोज से 5 minutes maximum, 5 minutes maximum, we can keep this virtual VM up before going it to into stop state, because it might be serving some of the existing request। ठीक है, तो इस 5 मिनट में ये रिक्वेस्ट को ये खत्म कर देगा, ये तो गारंटीड है। ये 5 मिनट में ये रिक्वेस्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, ताकि किसी यूजर को एक बैड एक्सपीरियंस ना मिले कि ये यहाँ से रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स जा रहा है, तब तक ये सर्वर ही मर गया। तो दिस विल बी अ बैड एक्सपीरियंस। तो इसके लिए हम लोग ये कनेक्शन ड्रेनिंग को भी ऑन करते हैं, और इसे भी ऑन करने का तरीका अगेन बैकएंड सेटिंग्स पे जाके कनेक्शन ड्रेनिंग को अगर हम इनेबल कर देंगे तो ड्रेन आउट टाइम पूछता है, तो मैक्सिमम इट इज इन सेकेंड्स, तो ये मैक्सिमम 3600 सेकेंड्स। इसको डिवाइड कर दो 60 से, तो कितना मिनट हुआ ये? कितना हुआ यार? 3600 सेकंड कितना हुआ? कितना मिनट हुआ? डिवाइड बाय 60 करो। 60 minutes. 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा ड्रेन आउट टाइम हम इसे दे सकते हैं। मतलब 1 घंटा तक वो VM कर सकता है ड्रेन होने के लिए, मतलब कि वो 1 घंटा तक एक्टिव रहेगा। अगर हम उसे फोर्सफुली स्टॉप भी कर देते हैं तो ये मैक्सिमम 1 घंटा तक रह सकता है। मिनिमम ड्रेन आउट टाइम इज 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो जनरली हम लोग इसे 5 मिनट तक हम लोग इसे करके रखते हैं, बट मैक्सिमम इट कैन गो अप टू अलाउज एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट टू कंप्लीट विद इन दिस टाइम आउट। समझ गए एवरीवन? Yes. ठीक है, चलो। So this wraps up our application gateway. Application gateway is a very dynamic, very dynamic topic, और it's a very क्या बोल सकते हो, ये इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूज किया जाता है। तो इसको बढ़िया से पढ़ना, एंड प्लीज डू द लैब्स अकॉर्डिंगली फॉर द एप्लीकेशन गेटवे एज वेल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक चीज और बताना रह गया था कि देखो एप्लीकेशन गेटवे के ओवरव्यू पे जाओगे ना, तो इसमें डायरेक्टली तुम्हें डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। तुम्हें ना इसे मतलब कि अगर मान लो तुम्हें इसे स्टॉप करके स्टार्ट करना है, तो तुम कैसे करोगे? उसके लिए यहाँ पे देखो एक बटन है। ये क्या करता है ना, ये एक पावर शेल खोल देता है। ये पावर शेल खोलता है पर्टिकुलरली फॉर एप्लीकेशन गेटवे। तो तुम्हें ना इस एप्लीकेशन गेटवे को बंद और शुरू करने के लिए तुम्हें यहाँ पे कमांड्स लिखने पड़ेंगे। You have to write down your commands using this PowerShell। ठीक है, यहाँ पे तुम इसे लॉग इन करोगे, बैश करना चाहते हो या PowerShell करना चाहते हो, आई विल चूज PowerShell। ठीक है, फिर ये यू हैव नो स्टोरेज माउंटेड, स्टोरेज माउंट करोगे, उसके बाद ये तुम्हें एक PowerShell खोल के दे देगा। देन यू कैन डू अकॉर्डिंगली वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू डू, यू कैन डू। देखो यहाँ पे इसका बटन है, ये क्लिक करने से टॉगल हो जा रहा है। एवरीवन क्लियर? इसे भी थोड़ा एक्सप्लोर करना, Yes, sir. से भी एक्सप्लोर करना सब लोग। चलो और क्या बताना था आज? और क्या टॉपिक था एक आज? एक्टिव डायरेक्टरी। चलो ठीक है, आया एप्लीकेशन गेटवे समझ में सबको? Yes, sir. प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, Azure Active Directory। Give me a few seconds। चलो, ये Azure Active Directory होता क्या है फिर ये समझते हैं। ठीक है, तो अब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन पे तुम्हारे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स है। क्या हो गया? अरे यार ये गया कहाँ? अच्छा
ठीक है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स है, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स है, तुम्हारा एक खुद का कंपनी है एंड इट हैज मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या फिर सर्वर्स हैं या फिर खुद के लोकल डेस्कटॉप्स या फिर जो कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं, हमारे लैपटॉप्स को प्रोवाइड करती हैं, अगर मान लो उसके पास अराउंड बहुत सारे हैं, ठीक है, तो अब बताओ इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो होता होगा, क्या हम लोग इंडिविजुअली जाके सब में सेट करते होंगे? क्या वो feasible है कि इंडिविजुअली आई विल गोइंग टू each of the virtual machines, each of the VMs या फिर each of the laptops और हम जाके इसे सेट करते होंगे? ठीक है। और अगर मान लो इसे में सेट करना होगा कि क्या हम एक ही यूजर नेम पासवर्ड सबको दे सकते हैं? व्हाट इफ अगर किसी एक में मेरा ब्रीच हो गया यूजर नेम पासवर्ड, देन ऑल आवर VMs एंड ऑल आवर लैपटॉप्स माइट बी हैक्ड, क्योंकि इसका यूजर नेम पासवर्ड तो सब में सेम था और इसने सब कुछ ये टैप कर लिया। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि जब भी हमारे पास कुछ मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम टूल काइंड ऑफ एंड स्टफ का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो हमारे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी करके कंसेप्ट होता है कि हम एक सेंट्रल सर्वर बनाते हैं, सेंट्रल सर्वर बनाता है, और ये सब का ऑथेंटिकेशन ना वाया ये सेंट्रल सर्वर ही कराएंगे। ठीक है, ये सेंट्रल सर्वर को इस कंसेप्ट को बोला जाता है AD, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इसे अज्योर में बोला जाता है AAD, इन सिंपल टर्म्स इट्स अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे तो इसे कहा जा सकता है अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या फिर एक्टिव डायरेक्टरी is a database which stores information about users, groups, प्रिंटर्स, मतलब जो भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये एक सेंट्रल डेटाबेस की तरह काम करता है जो हमारे यूजर्स, हमारे ग्रुप्स और हमारे प्रिंटर्स या फिर जो भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, ये उन सब चीजों को इन सब चीजों का अपने पास एक इंफॉर्मेशन बना के रखता है। ठीक है, तो अगर किसी सर्वर को अगर हमें इस अज्योर इस एक्टिव डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगर करना है, तो हमें उस सर्वर पे, फॉर एग्जांपल दिस सर्वर, अगर इस सर्वर पे अगर हमें एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करना है तो हमें इसे डोमेन कंट्रोलर DC, ये डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, ये सब देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा AADS करके एक हमारा, जैसे हम लोग IIS सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं ना, वैसे ही हमारा AADS सर्वर होता है। हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे मशीन पे, हमारे विंडोज मशीन पे, तब जाके ये हमारा एज अ डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा एंड देन वी कैन प्रमोट दिस पर्टिकुलर सर्वर टू एन डायरेक्टरी, टू एन अज्योर, टू एन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, इसे करने के लिए वी ऑलवेज नीड टू हैव, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वी ऑलवेज नीड टू हैव एन सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि इट शुड नॉट बी एन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट शुड बी एन सर्वर। ठीक है, जब भी हम लोग एक इमेज चूज करते हैं तो हमें वहां पे दिखता होगा कि इट इज अ सर्वर। ठीक है, विंडोज सर्वर है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं एप्लीकेशन गेटवे में चलता हूँ, नहीं एप्लीकेशन गेटवे में नहीं, जस्ट गो टू वर्चुअल मशीन, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन इनसाइड, किसी भी रिसोर्स ग्रुप में बना लो। मैं इसे बनाता हूँ अभी गेटवे RG में बनाता हूँ और इसे नाम रखूंगा मैं ADVM। ठीक है, और ये जो है ना सर्वर होना चाहिए, देखो विंडोज सर्वर 2016। ठीक है, तो कोई भी ले लेते हैं, चलो इसी ले लेते हैं, विंडोज सर्वर 2016। अच्छा, 2 VCUs आर नीडेड फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन बट ओनली 0/4। ठीक है, ये तो मेरे को बनाने नहीं देगा, एक काम करते हैं, उसे डिलीट करते हैं,
हमने जो अभी वर्चुअल मशीन्स बनाया ना, उसे डिलीट करते हैं, VM1 और VM2 को। VM1 डिलीट करते हैं, पोस्ट डिलीट करते हैं, क्लिक ऑन डिलीट। सेम VM2 पे जाते हैं, डिलीट करते हैं। और अदर हम लोग पूरे इस गेटवे RG को भी डिलीट कर सकते थे, क्लिक ऑन डिलीट। वेट करते हैं थोड़ा। When are your classes opening up for the 5th semester? September. September. September? Yes, sir. September Yes. कितना? 12. ओह भाई साहब, क्या करोगे जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा? उसके बाद तो और कुछ नहीं होगा करने के लिए। DSA. अच्छा, DSA करना है। चलो बढ़िया है, DSA करो बढ़िया से। मेरे को लग नहीं रहा है, शायद ही कोई DSA करते होगे तुम लोग में से। करना चाहिए जबकि तुम लोग को। पढ़ो यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वहाँ पे। देखो डिफिकल्ट तो नहीं है, बस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है सब कुछ। चलो ये वर्चुअल मशीन हमारा डिलीट हो गया, अब एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। कोई करते हो लीड कोड, ये सब कोई करते हो? लीड कोड कोई करते हो तो बताओ मेरे को। कोड शेफ करते हो, लीड कोड कोई नहीं करता है। चलो इसे लेते हैं विंडोज सर्वर, ठीक है। इसका नाम रखते हैं, क्या नाम रखे इसका? ADVM, ठीक है। ठीक है, इसे अगेन सेंटर इंडिया पे रहने देते हैं। गेटवे RG TTT, रिफ्रेश कोटा करो यार। आदर्श रिफ्रेश नहीं हुआ? सर शायद से मेरा सब्सक्रिप्शन जो है उसके वजह से हो रहा है, मैंने कि क्लाउड पे डिप्लॉय उसको डिलीट कर दिया। नहीं यार, मैंने किया था, ये हो जाना चाहिए था। पोर्टफोलियो डेवलप करूंगा सर प्रोजेक्ट के साथ। रिफ्रेश तो कर दो यार। चलो हो गया, आ गया। ठीक है यार, नहीं करो यार तुम लोग, रिव्यू मत करो यार, सॉरी। यूजर नेम सिलिकन, पासवर्ड इज पासवर्ड @123, पासवर्ड @123, ठीक है। इसमें सब कुछ अलाउ कर देते हैं। सब कुछ सही है ना? विंडोज सर्वर है हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ यार चलो, नेटवर्किंग पे भी ठीक है। गेटवे VNet VM सबनेट ही ले लेगा, बेसिक ले लेगा। चलो मैनेजमेंट मैनेजमेंट एडवांस टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट, जल्दी करा दो यार। ठीक है, मैं बस बता दूंगा कि कैसे एक एज़्योर डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर होता है, बस ये डिप्लॉय हो जाए एक बार, ठीक है। मतलब मैं बेसिकली तुम्हें बताने वाला हूँ ना कि कंपनीज में जब ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने जब अगर मतलब मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, तो फिर मेरे को कैसे एक nitish.kumar@organizationName.com मिलता है ना, वो कैसे बैकएंड पे कॉन्फ़िगर होता है, मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, मैं एप्पल के डेवलपर पोर्टल पे चलता हूँ।
ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखोगे कुछ है nitish.kumar@bluelabellabs.com, info@spikewell.com। तो ये सब चीज जो होता है, ये nitish.kumar@bluelabellabs.com, ये कैसे कॉन्फ़िगर हुआ होगा वो मैं बताऊंगा अभी, यूजिंग दिस एक्टिव डायरेक्टरी। गो टू रिसोर्स, चलो जल्दी से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट, आईपी एड्रेस क्यों नहीं बना यार? सर वो जो आप VM डिलीट किए तो वो डीएलोकेट हो गया IP डिलीट नहीं किया। अरे तो मैंने बस वीएम डिलीट किया ना, मैंने वीनेट डिलीट नहीं ना किया, ऐसा है क्या? ओवरव्यू, IP डीएलोकेट हो गया तो दूसरा चौथा IP नहीं मिला। अच्छा 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 अच्छा, हम उसके साथ एग्जिस्टिंग वाले को भी अटैच कर सकते हैं अगर उसको दिया नहीं। चलो नेटवर्किंग पे या फिर कनेक्ट पे करते हैं। कहाँ से हो जाएगा ये? अरे ये तो ओवरव्यू में तो आना चाहिए था। रिफ्रेश, पब्लिक आईपी से मिला ही नहीं है। एक काम करते हैं ना, बाहर से नहीं दे सकते इसे आईपी? दे सकते सर हैं। पब्लिक IP एड्रेस सर्च कर। चलो एक आईपी सर्च करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस ना। क्रिएट नहीं, नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला? हाँ, मैंने कि बस उसका सर्विस तो हमें को जाना, क्रिएट नहीं करना, बस पब्लिक आईपी एड्रेस से सर्विस है उसमें। अच्छा, सर्विसेज है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अच्छा, इसमें बना हुआ है। ये तो एक काम करते हैं, VM1 का आईपी दे देते हैं। कैसे दे सकते हैं? एसोसिएट करते हो, लोड बैलेंसर नहीं भाई, नेटवर्क इंटरफेस। कौन सा था ये? ADVM था ना? चलो ठीक है, एसोसिएट हो जाए भाई जल्दी। तो हमने क्या किया, अब हमारा आईपी का कोटा शायद खत्म हो गया होगा, तो हमने VM1 के आईपी को उठा के उसे दे दिया। वेट फॉर द एसोसिएशन। आदर्श बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हो? सर जब जो इतना टाइम देगा तो थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं। चलो ठीक है, सेव टू इंटरफेस हो गया। हम होम पे जाते हैं, अपने वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। ADVM, चलो अब इसके पास तो आ गया होगा। चलो आईपी एड्रेस आ गया, कनेक्ट करते हैं। चलो सब कुछ आ गया इसके पास। हाँ, यहाँ पे आना ही क्यों है? पब्लिक आईपी को कॉपी करो, RDP कनेक्शन लगाओ, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, ऐड PC, पेस्ट करो, सिलिकॉन डालो, क्लिक ऑन यस, कंटिन्यू। पासवर्ड गलती होगा क्योंकि P मैंने स्मॉल में सेव किया हुआ है। अच्छा नहीं, अपडेट कर दिया था। चलो वेट फॉर इट टू ओपन अप। चलो जैसे हम लोग IAS कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, वैसे ही सेम हमारा AADS करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, बस उसे ही हमें करना है और इस सर्वर को प्रमोट करना है टू एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, चलो वेट करते हैं। BPA रिजल्ट्स,
चलो ठीक है, क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा Azure Active Domain Services, ADDS, डोमेन सर्विसेज। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, ऐड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लिक ऑन इंस्टॉल। ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, अच्छा ये बताना था ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब बताता हूं मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, देखो, द प्राइमरी यूज ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, जब भी तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे तुम अगर कोई ज्वाइन करने वाले हो, फिर अब कुछ ज्वाइन करोगे ना, तो वो कंपनीज में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम उनके वाईफाई पे जाके, मतलब उनके इंटरनल नेट पे जाके तुम कुछ स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम हार्डवेयर लेवल पे बात करें तो हो सकता है कि तुम अपना पेन ड्राइव उनके लैपटॉप्स पे, मशीन्स पे ना डाल पाओ। ठीक है, सो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पे चलूं तो ये देखो क्या क्या कहता है। क्रिएट वेल डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्ट्रक्चर इन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, गिव जीपीओज डायरेक्टिव्स नेम्स। ठीक है, डू नॉट यूज द रूट यूजर्स और कंप्यूटर फोल्डर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये क्या होता है ग्रुप पॉलिसी, ये सब लोग पढ़ लेना कि ग्रुप पॉलिसी कहता क्या है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो गया, क्लोज करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बार ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा ना, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस फ्लैग। ठीक है, और हमें इसे बोलना है कि प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, मैं न्यू डोमेन ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारे कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन होगा ना, हम वो यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम इसका नाम रखते हैं siliconazure.com। ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमारा जो भी आईडी बनेगा वो हमारा बनेगा, पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड @123, कंपनी पासवर्ड, पासवर्ड @123। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, वेट करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन एज़्योर। ठीक है, ये देखो इसका बैकअप कहाँ कहाँ बनेगा, ये तुमको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सी विंडोज के अंदर NTDS, ये सब इसके डेटाबेस फोल्डर रहेंगे, यहाँ पे लॉग फाइल्स रहेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। चलो, और ये जैसे ही प्रमोट हो जाएगा हमारा एक डोमेन कंट्रोलर पे, तो ना ये ना एक सर्वर रिबूट हो जाएगा, मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंस्टॉल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन के बाद एक बार सर्वर रिबूट हो जाएगा। वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 5-10 मिनट। और ये जो मेरा सर्वर है ना, ये बाइंड हो जाएगा हमारे डोमेन नेम पे। मतलब हमारा डोमेन नेम क्या था, azuresilicon.com करके हमने जो लिखा था ना, ये उस सर्वर से बाइंड हो जाएगा। और अब हम लोग उसके लिए ये हमारे यहाँ पे ये एक्टिव डायरेक्टरी इनेबल हो जाएगा। लिमिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल्स इन विंडोज, ग्रुप पॉलिसी में भी कहता है डू नॉट अलाउ रिमूवेबल मीडिया ड्राइव्स। ठीक है, मेक श्योर एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। ये सारे बेस्ट पॉलिसीज हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। ये मोस्टली ये सब जो काम है ना, ये सिस्टम एडमिन्स के होते हैं। ठीक है, तो बस याद रखने के लिए, मतलब ये समझने के लिए, ये अज्योर डायरेक्टरी का हमने कंसेप्ट, देखो ये रिस्टार्ट हो गया, ये रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा टाइम तक, वो रिस्टार्ट होने में मिनिमम 2-4 मिनट तो लगाता ही है। टेन लीड कोड आर्टिकल्स दैट विल मेक योर कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन लॉट इजियर। लिंक्डइन चलाते हो ना सब लोग यार?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉलो सम ऑफ द पीपल जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। देखो एक निशान चहर करके बंदा है, ये मेरे साथ ही पास आउट हुआ था, मतलब मेरे साथ मतलब क्या है, ये 2021 पास आउट है। ही इज ऑल्सो एन iOS डेवलपर बट ही इज इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये काफी अच्छे कॉलेज से पास आउट होता है। देयर इज एन कॉलेज इन दिल्ली नेम्ड NSU. NSIT था। NSIT था क्या? Yes, sir. NSIT अभी NSUT हो गया. हाँ NSUT हो गया, या NSIT। कोडशेप पे भी बहुत कुछ काम किया हुआ है ये, BTech computer engineering. So there are few people that you can always follow. Nishan Chair is one of them. One of them is Striver करके जो अभी काफी famous है, that is Raj Vikramaditya. Raj Vikramaditya। ठीक है, he was basically in a what do you say, third tier बोलते हो या क्या बोलते हो हम लोग? Tier 3 college. Tier 3 college। ठीक है, कोई वेस्ट बंगाल पे कोई कॉलेज था, ये वहां से पढ़ाई कर रहा था। NC Jalpaiguri Government Engineering College, and from here he went up to, first of all, internship at Amazon, then Media.net. This is a very big company. Still इसने इसे छोड़ा and finally he found an offer in Google Warsaw. ये हमारे कॉलेज भी आया है लास्ट ईयर। Anyone remembers? ये हमारे कॉलेज आया था लास्ट ईयर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो फिर से कनेक्ट करते हैं। यस, प्लीज वेट द ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे 2-4 लोग हैं दैट यू कैन फॉलो। राज विक्रमादित्य हो गए, निशान चहर हो गए, रिद्धि दत्ता इज देयर। रिद्धि दत्ता के बाद आसिफ खान। ठीक है, एक मैं इंटरेस्टिंग, ये आसिफ खान है ना, ही वाज बेसिकली, इसने ना आसिफ खान ये स्विगी पे अराउंड 3-4 साल काम किया। इसने 4 साल काम किया स्विगी के, और ये उसका स्विगी का पूरा बैकएंड बनाता था। एंड ही इज पास आउट ऑफ IIIT इलाहाबाद या कहीं से ये पास आउट है। अच्छा, BTech प्लस MTech, हाँ ये रहा, IIITM, ये जहाँ से पास आउट है, ABV। फिर ये यहाँ से हैशडिन पे गया, सॉरी हैशलर्न मतलब हैश डेलॉइट हो गया। फिर ये Amazon पे काम किया, देन इसने 4 साल स्विगी पे काम किया। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स जिसने स्विगी को इनिशियली क्यूरेट करने में हेल्प किया था। एंड लेटर ऑन ये लास्ट ईयर ही मूव्ड ऑन टू booking.com। इट वाज एन ये काफी बड़ा कंपनी है booking.com। ठीक है, ये कहाँ पे अभी है? एम्स्टरडैम में। देखो यही सब चीज एक्साइट करता है। यू शुड फॉलो दिस पीपल एंड यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू सी देम। और मैं किसी का नाम बताने वाला था। ठीक है, हाँ, रिसेंटली द CTO ऑफ स्विगी, ठीक है, रिसेंटली द CTO ऑफ स्विगी, उसने ना अभी अभी रिसेंटली उसने छोड़ा स्विगी को। ठीक है, इनका तुम लेटेस्ट पोस्ट देखोगे तो सी ऑल पोस्ट। ठीक है, एक्स CTO, one day 6 day founding team members story। सी फाइनली इसने इस दिन जिस दिन छोड़ा था उसने लिखा था, एंड सो इट एंड्स, 5 years of magical run at Swiggy came to an end today। He was the CTO। तुम लोग और किसी को फॉलो करते हो? मोहम्मद फराज, ये कौन है? सर ये अभी फिलहाल गूगल में जॉब करते हैं। मोहम्मद फराज, प्रोडक्ट मैनेजर जियो। नहीं सर, ये वाला नहीं, फराज वाला। कुणाल कुशवाहा क्या करता है यार? कुणाल खुश, फाउंडर है क्या? लंदन एरिया, वी मेक डेव्स। बहुत है यार, बहुत।
महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तुम लोग लिंक्डइन से जॉब्स भी सर्च कर सकते हो, या फिर सपोज तुम लोग इंटर्नशिप भी, अगर मान लो तुम लोग अज्योर इंटर्नशिप, डेटा साइंटिस्ट इंटर्न, विंडोज डेवऑप्स इंजीनियरिंग इंटर्नशिप इन मुंबई, मिल जाएगा। आई सपोज तुम लोग प्रॉपर्ली सर्च करोगे ना, वर्क फ्रॉम होम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप एट मित्तल लर्निंग स्टार्स, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो, नाउ दिस इज अप एंड रनिंग, इसे वेट करते हैं इससे कंप्लीट होने के लिए, फिर हमारा यहाँ पे एक यूजर डेटाबेस बन जाएगा। लेट अस चेक। मूव आउट फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड अब तुम्हारा टाइम आ गया है दैट यू शुड लर्न व्हाट डू से यूज लिंक्डइन। ठीक है, फाइल्स एंड स्टोरेज सर्विसेज पे नहीं यार, फाइल्स एंड स्टोरेज सर्विसेज पे तो नहीं था। ठीक है, हाँ, यहाँ टूल्स पे, ये टूल्स पे तुम देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा अज्योर डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, क्लिक ऑन दिस। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ये तुम्हारा ये डोमेन नेम यहाँ रजिस्टर हो गया है। यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना दो। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास एचआर आने वाली हैं। ठीक है, तो तुम एचआर का एक फोल्डर बना दिए और इस एचआर में तुमने एक यूजर को ऐड कर दिया। ठीक है, कहाँ गया, यूजर को ऐड कर दिया। उसका नाम फॉर एग्जांपल मान लो एचआर का नाम होगा पल्लवी 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 त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका जो यूजर नेम लॉगिन नेम बनेगा ना, फॉर एग्जांपल @, देखो अब ये बन रहा है ना siliconazure.com, क्योंकि हमने इसे रजिस्टर कर लिया है, हमने इस डायरेक्टरी को बताया है कि दिस इज माय डोमेन नेम। सो इसका जो भी यूजर नेम पासवर्ड बनेगा तो हम लोग इसको बता देंगे वॉट एवर वी वांट टू गिव। हम लोग जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट नेम डॉट सेकेंड नेम, पल्लवी डॉट त्रिपाठी, पल्लवी डॉट त्रिपाठी। तो ये बन जाएगा पल्लवी डॉट त्रिपाठी @siliconazure.com। इसे हमें पासवर्ड बता देंगे और यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। ठीक है, तो बहुत सारे सर्वर पे तुम लोग देखते होगे, जब फर्स्ट तुम लॉग इन करते हो देन यू शुड ऑलवेज चेंज योर पासवर्ड। ठीक है, तो इसे पासवर्ड दे देते हैं 1234, कंफर्म पासवर्ड 1234 एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश। अच्छा, बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट। ठीक है, बैक चलते हैं, इसे दे देते हैं पासवर्ड @123 और 123, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक यूजर रेडी हो गया। अब देन नाउ वी कैन गिव द पर्टिकुलर यूजर वेरियस व्हाट डू यू से, बहुत सारे फीचर्स हम लोग इसको दे सकते हैं, बहुत सारे सर्विसेज एक्टिव कर सकते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर फीचर्स वी कैन गिव देम पावर टू डू समथिंग, रिमोट कंट्रोल, ये सब कुछ है। दिस इज अ डोमेन यूजर azure.silicon.com/users। यूजर्स के अंदर इसने एचआर्स को ज्वाइन किया है। फॉर एग्जांपल हमारे डेवलपर्स होंगे तो डेवलपर्स का एक अलग बनेगा। ठीक है, मोस्टली दीज थिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय द azure, not azure, these things are being handled by the system admin, but you should have the knowledge that ये एक्टिव डायरेक्टरी करता क्या है। ठीक है, अब बस एक ही चीज देख लेते हैं, क्लिक ऑन दिस पीसी। दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में जाओगे ना, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। अब देखोगे यहाँ पे दैट फुल कंप्यूटर नेम इज advm.silicon.azure.com और ये डोमेन हमारा बाइंड हो गया siliconazure.com। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स रन्स ऑन द बैकएंड फॉर द Azure एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, एवरीवन क्लियर? प्रैक्टिस करना एप्लीकेशन गेटवे और एक Azure डायरेक्टरी बना के देखना कि कैसे बनता है, इसका कंसेप्ट क्या है। एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास आई गेस। ठीक है, Adarsh, in the meantime, just clear up all the resource groups and everything that you have that you don't require particularly. ठीक है आदर्श? Okay, sir. चलो,
ठीक है, do it before 10:30. I have a class at 10:30 as well. Yes, sir. I'll do it. I'll do it. Chalo. So I am stop recording it.